ओके जी, सो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होती हैं दे आर बेसिकली यूज फॉर मैचिंग पैटर्न्स। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो आप थियरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स में करेंगे होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर, but I will give you a good overview of regular expressions and how to use them. Regular expressions are supported by all the languages. Think of any programming language and it would support regular expressions. They're basically used for matching patterns, right? तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू एलिमेंट्स, वन इज लाइक लिटरल एंड द अदर वन इज मेटा करेक्टर। हमारे पास ये लाइक बीच में भी आ सकते हैं, आगे पीछे भी आ सकते हैं, सिर्फ लिटरल भी हो सकते हैं, सिर्फ मेटा करेक्टर्स भी हो सकते हैं एट टाइम्स। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इट थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है? तो स्ट्रिंग उसके अंदर लिटरल होगा, और फिर पैटर्न के लिए जो हम लोग चीजें उसके अंदर यूज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मेटा करेक्टर। सो I will give you a simple example. Let's start with the first meta character, which is dot, right? So we just open a browser, right? और यहाँ पे हम लोग कोई एक कंसोल पे खोल लेते हैं। ओके, लेट्स से वी हैव दिस कंसोल, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग how do we define a regular expression? Regular expression can be defined using new regex, या फिर हम लोग फॉरवर्ड स्लैशेस के बीच में जो कुछ भी लिखते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक मेटा कैरेक्टर है विच इज डॉट, राइट? सो इफ आई जस्ट राइट डॉट, व्हाट वुड हैपन? It would basically match any character, right? So if I want to test this regular expression कि इस पे कोई पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा, तो आई कैन राइट re.test, इससे मैं कोई स्ट्रिंग पास करूंगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो टेस्ट करेगी कि ये वाला पैटर्न स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? सो इफ आई लाइक गिव इट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, it returns false because it does not contain any character, right? But if I pass any character to it, so it would return true, right? So this a would be matched to this dot, so dot would match any character. अगर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना देते हैं डॉट, लेट्स से 1 2 3 डॉट, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास पैटर्न है उसके अंदर कोई भी करेक्टर हो, एग्जैक्टली वन, then 1 2 3 exactly this literal, then any character, right? Exactly one character. So अब इसको अगर हम लोग टेस्ट करें re.test, अब अगर हम लोग इसे abc पास करते हैं तो it would return false. अब हम लोग अगर इसे a 1 2 3 c पास करते हैं तो this a would be matched to this dot, so dot would match any character. 1 2 3 would be matched, should be matched to the literal, कोई literal है तो as it is आना जरूरी है, और फिर this following dot would be matched with C, right? So it should return true. So this returns true. Now, if the string contains, let's say, more characters than the pattern, for example, A, B, C, D, now what would happen? Or if we have like characters which are more than the defined in the regular expression, then the subset would be matched, right? So in this case, this A would be matched with dot, 1 2 3 would be matched as it is, and C would again be matched with the dot, right? So इस केस में भी हमें true मिलेगा. So ये हमारे पास एक dot character है. Then we have like many other characters. For example, this start and end characters, right? So this caret sign symbol represents the start of the string, and dollar sign represents the end of the string. So if we write something like dollar sign QWERTY, caret sign QWERTY dollar sign, so what would it match? The QWERTY, the string, should come at the start of the string. So the string should start with this thing,
and the string should end with this thing, right? So caret represents the start of the string and $sign represents the end of the string. So for example, if in the same example, we redefine the regular expression and we say that, so in the start, we should have any character followed by 1, 2, 3 and followed by any other character. So if we test this regular expression, re.test, now we can have any character, right? And then followed by 1, 2, 3, and then any other character, right? So if we test this thing, we should get true, right? And if like, even if it is like subset, it would still return true because this single character followed by 1, 2, 3 followed by another character comes at the start of the string, right? And if we put $sign at the end of the pattern, so it means that the pattern should start, the string should start with any character followed by 1, 2, 3 followed by any other character, and then the string should end, right? So this thing should come at the end. So if we put caret symbol at the start of the pattern, $sign at the end of the pattern, it means that the whole string should match this pattern, right? So if we write re.test again, if we give it the same thing, so this would not be matched because dot 1, 2, 3 dot comes at the start, but not at the end, right? So it would return false. But if we have the string like this, X matches with dot 1, 2, 3 with 1, 2, 3 literal, and then J with the second dot. So now it should return true, right? The whole string matches this thing. So if we have, let's say, an email address or a CNIC or a phone number, then basically we put caret symbol, we enclose the pattern with caret symbol and $sign so that the whole string is matched, not just its substring. ठीक है, ये चीज clear है? So if we move onwards, so /t would match tab character, /n would match new character, dot we have already seen. Now, what does this square brackets represent? The square bracket, if they do not start with the caret symbol within the square brackets has another meaning, right? So if the square brackets contains something, some characters, then it means that any of these characters would be matched, right? The whole square brackets would match just one character, exactly one character. Like dot matches exactly one character. Doesn't matter how many characters do we have in the square brackets, one of them should be present in the string. So in this case, if we write, if we have this regular expression, let's say we define it as we put like these things, so 1, 2, 3 in square brackets, right? So what would it mean? It means that the string should contain either 1 or 2 or 3, right? There's like or between the characters. And if we write A, B, C, then we say that it should contain either 1, 2, 3, A, B, C, like either of these six characters. And if we match it, so if we have like, so basically any of these characters in the string, it would be matched. So if we just test it, we say like 1, so it should return true. If we see C, it should return true. If we say like D, it returns false because D is not in the square brackets. The square brackets is called character class, right? And if we put caret symbol and $sign, then how many characters would this pattern match? Anyone? ये किस किस्म के strings के against true return करेगा? Anyone? सर जो स्टार्ट भी 1, 2 इन सब में से कोई एक स्टार्ट हो रहा हो, इन्हीं सब से कोई एक एंड भी हो रहा हो। आप ये बता सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी? सर इट कुड बी नहीं 1 भी हो सकती है सर, 2 सॉरी एटलीस्ट 2 सर होगी। 2 किस वजह से? सॉरी सर 1 भी हो सकती है क्योंकि वो 0 भी हो सकती है।
वो सर क्योंकि एटलीस्ट इनमें से तो कोई ना एक होना चाहिए ना हाँ, उसको। 2 भी हो सकती है। 2 यस यस सर 2 हो सकता 2 नहीं हो सकती क्योंकि करेक्टर क्लास ना सिर्फ एक करेक्टर को मैच करेगी। है। ओके तो इन 6 में से कोई एक करेक्टर होना चाहिए, लेकिन होगा एग्जैक्टली एक। ओके ठीक है। सो इफ वी पुट कैरेट सिंबल एंड डॉलर साइन, देन वी इफ वी राइट re.test a, it would return true. If we write d, it would return false. If we write a1, it would 1a, it would return false. Why? Because the string should start with this pattern and should end at this pattern. So this pattern is matched, and then rest is ignored. Rest does not match, right? So वो start और end वाली condition जो whole string जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो करेक्टर क्लास में जो भी चीज होती है वो हमारे पास मैच होती है। अब जो करेक्टर क्लासेस होते हैं, we can give ranges to the character classes. So for example, we can say that instead of writing 1 2 3, we can say 1 2 3 and A to C, right? So it would do the same thing. So it would match any character which is between 1 and 3 and A and C. And if you want to match any character which is like a digit or a small alphabet or a capital alphabet, right? So we define it like this. So if we test it, it would basically match any number between 0 to 9, right? It would match any alphabet between A and Z, right? But other than that, it would not match anything, right? So if we pass on something which is like different than these characters, it would not be matched. So we can give the ranges as well. Now, if we put a caret symbol at the start of the the character class, so this is character class. If we put a caret symbol, it inverts the characters, right? So what do we mean by this? This means that any character other than these characters would be matched. So if we have character which is not 0 to 9, which is not A to Z, small or capital, it would be matched. If we have any characters between 0 and 9, A to Z, it would not be matched. So it basically inverses the characters, right? So if we just like test it, so for A, it would return false. But if we pass a character which is not among this character class, it would return true. So basically caret symbol inverts the selection. Now, then we have /w. So /w matches basically any alphabet or digit. /w matches any non-word characters. That means other than digits and letters. /s, small s matches any white space character. That includes space, tab, new line, carriage return, and other similar Unicodes. /capital S matches non-space character. So anything which is other than the space. /d matches any digit, right? So for example, in this case, we can replace 0 to 9 with /d, right? So it means 0 to 9, any digit between 0 to 9. And then /capital D means any non-digit. Then we have repetitions. Star means 0 or more occurrence. For example, if we put a star here, right? So it would means that this character, for example, we start with a simple thing. So if I write A static, it means 0 or more A's, right? So if I test it with like re.test empty string, it would return true because there is no A. If I pass it single A, it would return true. Any number of A's, it would still return true, right? So static means 0 or more occurrence. Plus means 1 or more occurrence, right? So if I write plus, it would mean that I should have at least one A and there is no upper limit. There should be at least one A followed by any number of A's. So if we test it with an empty string, we should get false because there is no A. We expect at least one A. And then rest, it behaves the same as
static, right? So it should return true. And then if we write question mark, this question mark means 0 or 1 occurrence. So what kind of strings this would match? A single A or no A, right? So either empty string or a string containing a single A. So if we write re.test A, it should return true. If we write empty string, it should return true. But if we write more than one A's, A followed by A or anything, it would return false. It is returning false because of this caret and dollar symbols, right? So the whole string should match the pattern. And then if we want to fix the number of occurrences, let's say we say that we should have like exactly 3 A's, right? So we set the occurrence in the curly brackets, right? So we say that we should have exactly 3 A's, right? So it would match exactly three A's. If we give less A's, they would not be matched. If we give more A's, it would not be matched. So re.test, if we give like 3 A's, it should return true. Other than that, anything, it would return false, right? And then if we put comma, then it means 3 or more A's, right? Whatever pattern. If we want to have like something like ABC, like if we put ABC in parentheses, parentheses is for grouping. So it means that we should have at least 3 ABCs. So ABC, 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 and followed by any number of ABCs, right? So we will discuss groups later. So if we have a literal followed by curly brackets, we give a number and then comma and do not give anything. So it means that it should match pet strings having 3 or more A's, right? So if we test it, if we give it 2 A's, it should return false, 3 A's true, and then any number of A's, it should return true. And then if we write 3, 5, so it says that it should match 3 to 5 A's, right? So if we give 3 A's, 4 A's, or 5 A's, it should be matched. But if we give like more than that or less than that, it should not be matched. And then we have or. Or is like, if we just redefine the pattern, we say that A or B. So either this thing or this thing, right? So in this case, we say that this regular expression would match either A or B, and how many times? At least 3 times, at most 5 times. So it would match something like this: A, right? A, B, A, whatever. मतलब A या B में से कुछ भी हो, कितनी मरतबा होना चाहिए? 3 to 5. अगर हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कह देते हैं कि लेट्स से ABC हो या फिर XY हो, राइट? तो और एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स होना चाहिए. तो अब ये किस किस्म के पैटर्न्स को मैच करेगा? ABC, ABC, ABC एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है? अब ABC की जगह पे हम लोग XY भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो इट वुड ऑल्सो बी मैच एंड फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ नो एट मोस्ट 5, राइट? सो इस अब 5 हमारे पास हो गए ये पैटर्न्स, ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अब जैसे ही हम लोग एक और ऐड करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? सो दिस डज नॉट नीड टू बी लाइक अ सिंगल करेक्टर. हमारे पास एक से ज्यादा करेक्टर्स भी हो सकते हैं. एक से ज्यादा करेक्टर्स हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने बाउंड करना है उसे नंबर्स के हिसाब से, करली ब्रैकेट से, तो वो फिर हम लोग उससे पैरेंथेसिस में डाल देंगे. So this was all related to regular expressions. Now let's do some meaningful regular expressions. What is the pattern of CNIC? So we have like some digits, right? 5 digits, then a dash, then how many digits? Right? Something like this. So we have like 5 digits, then we have 8 digits, and then we have 1 digit. So CNIC pattern is like this. Now, if we want to match this with the regular expression, how can we do that? So कोई मुझे बता सकता है इसका पैटर्न क्या होगा? Now I know it would be difficult, but can you try at least?
फिर इसमें पैटर्न काइंड ऑफ हम डैशेस के बीच में देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन कोई आप गेस कर सकते हैं? मुझे एक डायरेक्शन दे दें कि क्या होगी रेगुलर एक्सप्रेशन। वी हैव 5 डिजिट्स, तो डिजिट्स के लिए क्या यूज करेंगे? /w। सर डी। हाँ, /d, /d, राइट। और फिर कितने डिजिट्स हैं? इनिशियली 5 है, फिर डैश है, फिर 8 है, फिर डैश है, फिर एक डिजिट है, राइट। तो फिर यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि एग्जैक्टली 5 डिजिट्स मैच होने चाहिए? तो ब्रेसेस के अंदर 5। एक्सीलेंट। सो ब्रेसेस के अंदर हमारे पास 5 आ जाएगा। देन वी हैव डैश। सो डैश हैज अ स्पेशल मीनिंग। सो स्पेशल मीनिंग वाले होते हैं, उसे फिर हम लोग escape करते हैं बैकस्लैश के साथ, ठीक है। देन व्हाट? /t और फिर सर 8 फिर स्लैश डी एंड d 1। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि /t exactly 1 को मैच करेगा, राइट। सो इफ वी राइट दिस पैटर्न and we have like if we want to like test it, so we can have re dot test और फिर आगे हम लोग उसको ये string पास कर सकते हैं, right? So it would return any matching pattern, right? So अगर आपके पास इसके अंदर numbers change भी हो जाते हैं तो it would still match them, right? जैसे हमारे पास okay, what do you think if I add like ABC, right, and XYZ, would it return true or false? फॉल्स सर। और कोई? सर फॉल्स होगा बिकॉज हमने उसको डिजिट पास किया हुआ है ना। ठीक है, और ट्रू वाला कोई है बच्चा जो कहे कि ये ट्रू रिटर्न करेगा? So actually it would return true. And why does it return true? Because when we are defining the pattern, we say that like the string must contain this pattern, right? उसके अंदर ये pattern मौजूद होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि पूरे का पूरा string इस pattern को match करे। तो अगर किसी string के अंदर ये कोई like उसका partially like उसका कोई part सब string जो है इस pattern को match कर रहा है तो उसके against भी true मिलेगा। Now if you want to make sure कि the whole string is matched, तो फिर क्या करेंगे? इस pattern को कैसे change करेंगे? स्टेरिक एंड डॉलर, सॉरी कैरेट एंड डॉलर। Caret and dollar, right? So we say that the whole string should be matched with this pattern, right? तो इसको जब हम लोग अब दोबारा टेस्ट करेंगे तो it returns false। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग इसको डैशेस को ऑप्शनल बनाना चाहें, हम लोग कहें कि लाइक डैशेस ऑप्शनल हैं, अगर यूजर डैशेस ना भी दे तब भी एक वैलिड CNIC है, तो वो कैसे करेंगे? अभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा ना, लेकिन इस पैटर्न को कैसे रीडिफाइन करें? ऑप्शनल किस चीज से बनाते हैं? 0 और 1 रेफरेंस से, और वो क्या होता है हमारे पास? क्वेश्चन मार्क, राइट? सो इफ यू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर एनीथिंग इट बिकम्स ऑप्शनल, आइदर इट अपीयर्स 0 टाइम्स और 1 टाइम्स, राइट? तो इसको अगर हम लोग डैशेस को ऑप्शनल करते हैं इसके अंदर, वो क्वेश्चन मार्क से कर देंगे, और फिर हम लोग इसको दोबारा टेस्ट करते हैं तो वुड गेट ट्रू, ठीक है। वन लास्ट थिंग के एक टेस्ट का फंक्शन होता है, ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स करता है। एक हमारे पास एग्जीक्यूट या एग्जैक्ट का फंक्शन होता है, इसे भी हम लोग जो है वो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ट्रू फॉल्स इट बेसिकली रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? एन एरे लाइक ऑब्जेक्ट। इस एरे के 0 इंडेक्स पे जो पैटर्न मैच हुआ हुआ होता है वो नजर आ जाता है, ठीक है। 0 इंडेक्स पे जो पैटर्न मैच हुआ होता है, जैसा अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है let re is equal to /d3, right? So अब हमारे पास क्या होगा कि जो ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करेगी? 3 डिजिट्स को जो है मैच करेगी। अगर हम लोग इसको इस पे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें से 3 डिजिट्स जो है वो हमारे पास मैच होंगे। तो अब
यहाँ पे 1 2 3 मतलब स्टार्ट में उसे जो 3 डिजिट्स मिले उसने उनको मैच कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो जीरो इंडेक्स पे आपके पास मैच पैटर्न होता है। अगर आपने पैरेंथेसिस के अंदर ग्रुप्स दिए हुए हैं और ग्रुप्स को आपने नेम किया हुआ है, नेम करने का भी तरीका होता है, क्वेश्चन मार्क और आगे एंगल ब्रैकेट्स में ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर आगे पैरेंथेसिस में जो है वो पैटर्न लिखते हैं, तो वो लाइक नेम ग्रुप हो जाता है। तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि लाइक जितने भी हमारे पास 3 डिजिट हमारे पास पैटर्न आ रहे हैं, मतलब 3 डिजिट्स आ रहे हैं, अभी रेगुलर एक्सप्रेशन ने क्या किया है, उसे सिर्फ एक मरतबा मैच किया है। इफ यू वांट टू मैच ऑल द अकरेंसेस, लेट्स से वी से के हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर 1 जो है वो उसकी कितनी अकरेंसेस है, किस किस जगह पे आ रहा है। अगर हम लोग 1 लिख के जिस पैटर्न को 1 लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, पहला जो 1 मैच होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 1 जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया। अगर हम लोग इसके साथ एक फ्लैग यूज कर लें जी का, ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश जो सेकंड फॉरवर्ड स्लैश होती है उसके बाद आप फ्लैग्स दे सकते हैं, जैसा जी का होता है एक ग्लोबल मैच होता है। तो अब क्या होगा, ये पैटर्न जो है जस्ट फर्स्ट टाइम उसको नहीं मैच करेगा, इट वुड लाइक कीप मैचिंग दीज पैटर्न्स टिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो जितने भी मतों से 1 मिलेगा या ये पैटर्न मिलेगा वो सारों को जो है वो फाइंड करेगा। तो आगे स्लैश जी लिख देते हैं और फिर दोबारा हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। Yeah, so it has basically matched the first pattern ही यहाँ पे मैच हुआ है। Yeah, so I have to look into it. I was expecting के multiple matches would be returned. So if we have like या सो एग्जैक्ट जो है वो हमें उस तरह का बिहेवियर नहीं बता रही जिस तरह का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लाइक जिस तरह आर ई डॉट एग्जीक्यूट को आप स्ट्रिंग पास करते हैं ना, इसी तरह स्ट्रिंग डॉट सर्टन फंक्शंस हैं जिन्हें आप रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। मैच इज वन ऑफ देम, मैच ऑल इज अनदर वन। तो आपके पास जो है वो अब यहाँ पे उसने बेसिकली क्या किया है कि वो जितने भी वंस आए हैं, जिस तरह इस वाले स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग्स आए हैं, तो उसने 6 के 6 जो है वो मैच करके रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, तो स्लैश जी की वजह से हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग स्लैश जी का पैटर्न ना यूज करते तो फिर इट वुड हैड रिटर्न जस्ट 1, राइट। सो जस्ट 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट पैटर्न मैच हुआ है वो उसने रिटर्न कर दी है। सो ये मैच और मैच ऑल पे मैं बाद में आता हूँ। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो? वन मोर थिंग के लेट्स से अगर हमारे पास कोई हम लोग इस तरह का पैटर्न बनाते हैं कि हमारे पास लेट्स से वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं जो CNIC की थी, ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट 5 डिजिट्स हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देते हैं, फिर जो नेक्स्ट 8 डिजिट्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, और फिर लास्ट डिजिट है उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। सो इफ़ यू नो द पैटर्न, सो जो फर्स्ट 5 डिजिट्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द एरिया, जिस तरह पिंडी के जितने भी लोग हैं उनका 37405 से होगा। फिर स्लैश जो नेक्स्ट 8 डिजिट्स हैं वो उस एरिया के अंदर आपका लाइक सीरियल नंबर होता है काइंड ऑफ, और फिर आखिरी जो डिजिट होता है इफ इट्स इवन इट रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, इफ इट्स ऑड इट रिप्रेजेंट्स अ मेल, राइट। तो वो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग ये चीजें एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट पुट दीज लाइक 3 पार्ट्स ऑफ द CNIC in parenthesis, right? Now let's see what if we match the CNIC with this thing. So re.exec और फिर आगे उसे हम लोगों ने ये CNIC दे दिया, right? Now we see that we have like 0 इंडेक्स पे जो पूरा स्ट्रिंग मैच हुआ वो होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो है जो फर्स्ट ग्रुप है वो आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड ग्रुप आ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास थर्ड ग्रुप आ जाएगा, राइट। जो पैरेंथेसिस में जो कुछ भी मैच होता है वो हमारे पास सब ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाता है। सो इस केस में हमारे पास ये 1 2 3 5 we can say it area, this is area, this is like serial number within that area and this is like represents the gender। तो इस तरह पैरेंथेसिस जब हम लोग यूज कर लेते हैं और फिर हम लोग एग्जैक्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास
वो जो पैरेंथेसिस है उनके अगेंस्ट जो पैटर्न मैच हुआ होता है वो हमारे पास इस इंडेक्स पे आ जाता है। ये पैरेंथेसिस वाली ग्रुप वाली बात समझ आ गई। और इफ आई रिकॉल करेक्टली तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसको लेट्स से अगर हम लोग ये कह दें कि ये आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये लेबल करने का तरीका होता है एक ग्रुप को। आई हैवंट ट्राइड इट बिफोर बट लेट्स ट्राई इट। तो अब यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर एरिया के अंदर हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 आ गया। तो वी कैन लाइक इन दिस वे वी कैन नेम द एरियाज। तो क्वेश्चन मार्क अगर पैरेंथेसिस के फौरन बाद आ रहा है तो, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसके बाद जो पैटर्न आ रहा है जो पैरेंथेसिस क्लोज होने से पहले तक है उसे आप एक लेबल असाइन कर रहे हैं उस ग्रुप को। इसको लेट्स से आप कहते हैं सीरियल नंबर, और लेट्स से इस वाले पैटर्न को आप कहते हैं कि ये आपके पास जेंडर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसके अगेंस्ट मैच करते हैं तो हमारे पास वो ग्रुप्स इस तरह इंडेक्सेस की फॉर्म में भी आ जाएंगे, और फिर ग्रुप्स की जो हमारे पास सब ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो हम लोगों ने लेबल्स असाइन किए होंगे उन लेबल्स के अंदर भी हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो हम लोग इसका लाइक अगर सिर्फ इसे एरिया निकालना चाहते हैं डॉट ग्रुप्स डॉट एरिया, तो वो चीज़ हमें जो है वो इस तरीके से हम लोग उसको मैच कर सकते हैं। तो दिस इज क्वाइट पावरफुल थिंग। मोर और लेस एक बिगर पिक्चर मैंने दे दी है, लेकिन यू नो के it would take a lot of practice. It would take a lot of practice. इसकी जस्ट ये है कि आप लोग आज के लैब टास्क में भी इसे फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज करने की कोशिश करें, और फिर इसकी खुद से भी जो है इसको प्रैक्टिस करें। एमडीएन के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे बुक के अंदर ये ग्रुप नेम्स का नहीं बताया हुआ, लेकिन एमडीएन के ऊपर जो है वो बताया हुआ है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? सर जी बेटे। सर आपने स्लैश जी का ये बताया था ना कि वो सारे मैचेस रिटर्न करता है, और अगर नहीं होगा तो वो सिर्फ फर्स्ट वाला रिटर्न करेगा, ऐसा ही हाँ, कुछ स्लैश था। जी नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट को रिटर्न करेगा। यस। और सर ये आपने एंड पे कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स का बताया, ये रिपीट कर दें। ये आपको CNIC के अंदर ये चीज पता चल कि जो फर्स्ट आपके पास 5 नंबर्स होते हैं ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एरिया को, फिर उस एरिया में सीरियल नंबर, और फिर लास्ट डिजिट जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जी सर। ठीक है, तो हम लोग इसे रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह हम लोग कर सकते हैं? जो हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है उसके अंदर इफ यू रिकॉल, ये अगर मैं हटा दूं तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न? यस सर। 5 डिजिट्स हैं, फिर एक ऑप्शनल डैश है, फिर 8 डिजिट्स हैं, फिर एक ऑप्शनल डैश है, फिर 1 डिजिट है। ठीक है, अब अगर, और इसको मैंने पहला काम क्या किया है कि इसको पैरेंथेसिस में डाल दिया। सो पैरेंथेसिस क्या करते हैं कि उसको एक ग्रुप बना देते हैं, उस लाइक सब पैटर्न को एक ग्रुप बना देते हैं। तो ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को मैंने लेबल असाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस के फौरन बाद क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और एंगल ब्रैकेट्स में उसका जो ग्रुप को जो भी नाम मैं देना चाहता हूँ वो मैं नाम दे दूंगा। तो अब इस पहले जो 5 डिजिट्स हैं उनको मैंने नाम दे दिया एरिया का, अगले जो हमारे पास 8 डिजिट्स हैं उनको मैंने नाम दे दिया सीरियल नंबर का, और फिर जो लास्ट हमारे पास है उसको मैंने नाम दे दिया जेंडर का। ये बात समझ आ गई? तो ये लाइक साइंटेक्स इस तरह के ओपनिंग ब्रैकेट के फौरन बाद फिर आप जो है वो क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ग्रुप का नाम दे देते हैं। ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई समझ। अब फिर जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर जो ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास उन नाम से ये पैटर्न जो वो मैच हो जाएंगे। जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैटर्न मैच हो रहा है ना वो हमारे पास इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा जिसे हमने जो भी लेबल असाइन किया हुआ है। ठीक है सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये थोड़ा सा लैब टास्क को लेकर सर एक क्वेश्चन है कि आपने वो फिग्मा वाला सर लिखा हुआ, तो सर पहली बात ये कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है फिग्मा का। नहीं 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 नहीं, लेट्स से फिग्मा में आपका ये डिजाइन है ना, तो आपने सिंपल उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, या आपने स्क्रीनशॉट लिया उसका, उसे एज इमेज सेव कर लिया। ठीक है, ओके सर। उसे एज इमेज सेव कर लें और एक पेज बना लें जिसके अंदर आप उसकी स्क्रीनशॉट्स कर दें। लेकिन होगा ये कि फर्स्ट स्क्रीनशॉट सिर्फ बाय डिफॉल्ट लोड होगी, बाकी जैसे विजिबल होना शुरू होंगी वैसे लोड होंगी। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद लाइक फिग्मा वेबसाइट या डिजाइन इटसेल्फ, बस जो आपने डिजाइन बनाए में उन्हीं की स्क्रीनशॉट लेके आप कर लेंगे। वन मोर थिंग, अभी तक हम लोगों ने ये 2 मेथड्स देखे, re.test string, राइट, या फिर हम लोगों ने देखा है
re.exec स्ट्रिंग, राइट। तो हम लोग जो है या तो रेगुलर एक्सप्रेशन को कोई स्ट्रिंग पास करते हैं टेस्ट के फंक्शन के थ्रू या एग्जीक्यूट के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। टेस्ट का फंक्शन क्या करता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देता है कि पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं। और एग्जैक्ट क्या फंक्शन क्या करता है कि अगर उसके अंदर लाइक पूरा पैटर्न जो मैच हुआ होता है वो भी आपको बता देता है। और अगर हम लोगों ने ग्रुप्स यूज किए में तो हर एक ग्रुप को अलहदा से जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये जैसे हम यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 ग्रुप्स उसने जो है CNI में से निकाल के जो है रिटर्न कर दिए। हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि स्ट्रिंग के साथ हम लोग कोई फंक्शन कॉल करें जिस तरह स्ट्रिंग डॉट मैच और उसे रेगुलर एक्सप्रेशन एज पैरामीटर पास कर दें, ठीक है। तो दिस वुड आल्सो वर्क। तो दोनों का इट्स अप टू यू कि आप लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के उसे एग्जीक्यूट या टेस्ट करते हैं, या फिर आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ही आप डॉट लगाते हैं और आगे मैच ऑल का फंक्शन या इस तरह के और फंक्शंस हैं उनको आप यूज कर लेते हैं। जिस तरह मैच का फंक्शन क्या करेगा, ये आपके पास एरे लाइक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैच ऑल भी वही काम करेगा जो मैच का फंक्शन करेगा, लेकिन ये काइंड ऑफ आइटरेटर की फॉर्म में आपको देगा। उसे आप फॉर जो भी रिजल्ट आया है उससे आप लाइक फॉर ऑफ के लूप के अंदर जो है वो 1 बाय 1 आइटरेट कर सकते हैं। या डॉट नेक्स्ट का उसके अंदर फंक्शन होता है, वो कॉल के आप करके नेक्स्ट पैटर्न पे जा सकते हैं। रिप्लेस के अंदर क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस आप पैटर्न देंगे, ठीक है। ये पैटर्न आपके पास मैच होगा और आप ये कर सकते हैं कि उससे आपने एक और पैटर्न से जो है वो रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो रिप्लेस जो है वो जस्ट फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस ऑल जो है वो तमाम अकरेंसेस को जो है वो रिप्लेस कर देगा। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि जी 1 2 3 4 5 को हम लोग रिप्लेस करते हैं, लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है, इसे वेरिएबल में स्टोर किए बगैर जो है हम लोग इसके साथ जस्ट डॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से वी स्टोर दिस स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल और यहाँ पे हम लोग रिप्लेस का फंक्शन कॉल करते हैं और हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 5 को रिप्लेस कर दो 3 7 4 0 5 से, लेट्स से, ठीक है। नाउ दिस लाइक 1 2 3 4 वुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग ही रिप्लेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग दे सकते हैं कि स्टार्ट में जो हमारे पास 5 डिजिट्स आ रहे हैं उन 5 डिजिट्स को रिप्लेस कर दो 37405 से, राइट। सो इस तरह वो रिप्लेस कर देगा। और अगर रिप्लेस ऑल का फंक्शन हम लोग यूज करें तो STR के अंदर हमारे पास ये पड़ा हुआ है और हम लोग ये कहते हैं 1 जो है वो हमारे पास जो है वो 9 से रिप्लेस हो जाए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 को जो है वो रिप्लेस कर दो 9 से, ठीक है। ओके अब इसके अंदर मसला ये है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है वो क्योंकि फर्स्ट अकरेंस को करती है ना, मैच करती है, तो तमाम अकरेंसेस को मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 की तमाम अकरेंसेस को मैच कराने के लिए इसके साथ कोई फ्लैग यूज करेंगे और वो कौन सा फ्लैग होगा, जी सर। जी। तो जब हम लोग जी करेंगे तो वो जहां जहां पे भी आपके पास 1 आ रहा है उसको वो रिप्लेस कर देगा 9 से, ठीक है। तो या जैसा हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो डैश है उसको वो रिप्लेस कर दे एम्प्टी से, बेसिकली डैशेस को रिमूव कर दे, ठीक है। तो जहां जहां पे भी हमारे पास डैश आएंगे उसको जो है वो रिमूव कर देगा। सो इसी तरह आपके पास लाइक मैच ऑल रिप्लेस ऑल की आपको समझ आ गई। सर्च जो है ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ लाइक रिटर्निंग यू द सब स्ट्रिंग द मैच पैटर्न, इट बेसिकली रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द मैच पैटर्न। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग इज द सेम, इसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो लेट्स से 1 जो है वो किस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 का इंडेक्स दे देगा, 1 का इंडेक्स क्या है हमारे पास 0। 5 जो है किस जगह पे आ रहा है, 5 का इंडेक्स दे देगा, 5 जो है वो इंडेक्स 4 पे है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज दे देते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर उसका -1 उसके अगेंस्ट आ जाएगा। तो अगर हम लोगों ने इंडेक्स को गेट करना है तो वी कैन लाइक यूज द सर्च फंक्शन। सर्च के अलावा फाइंड मैच के जो मैच ऑल के फंक्शन है वो हमें जो है वो सबस्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और ये जो है वो हमारे पास इंडेक्स रिटर्न करेगा। और स्प्लिट ये है कि अगर हम लोग लाइक लेट्स से यही हमारे पास स्ट्रिंग है और इसको हम लोग स्प्लिट करना चाहते हैं डैश के ऊपर,
तो हम लोग str.split और इसको हम लोग डैश दे देते हैं. इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी रेगुलर एक्सप्रेशन. अभी यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेकिन इफ यू मेक इट रेगुलर एक्सप्रेशन तो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं. तो ये फंक्शन क्या करेगा कि उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा. जो भी चीज हम लोगों ने, जैसे डैश अगर दिया हुआ है तो जहां जहां पे भी डैश आ रहा होगा वहां पे उसको ब्रेक कर देगा और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास लाइक ब्रेक करके उस करेक्टर पे या उस पैटर्न पे ब्रेक करके बाकी जो चीज बचेगी उससे वो एक एरे में डाल के रिटर्न कर देगा. जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू लाइक से द क्वाइट ब्राउन फॉक्स, राइट. अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसके अंदर स्पेसेस को सेपरेट कर दे, मतलब स्पेसेस पे इसको ब्रेक करें और बाकी जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास एरे में आ जाएं. द इंडेक्स 0 पे आ जाए, क्विक इंडेक्स 1 पे आ जाए एंड सो ऑन. तो क्या करेंगे, str.split और इसको हम लोग स्पेस दे सकते हैं. अब यहाँ पे पैटर्न और स्ट्रिंग का क्या फायदा है, क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा उसके अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर हम लोग दे सकते हैं, स्पेस हम लोगों ने दे दी, राइट. लेकिन जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे /s कर दें, so /s stands for space, but it would not only match a single space, but it would also match new line, it would also match tab, it would also match carriage return. तो वो सारे को भी जो है वो मैच करेगा. तो पैटर्न के अंदर हम लोग लाइक पैटर्न की बेस पे जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं.